हेलो व्यूअर्स, वेरी वार वेलकम इन दिस सेशन। और आज हमारे साथ हैं एकता, जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग गेट 2026 में बहुत बेहतरीन तरीके से फोड़ा है और बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो उनकी सक्सेस की स्टोरी जानते हैं उन्हीं की जुबानी। तो एकता, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बिहाफ ऑफ फिजिक्स वाला गेट वाला फॉर securing such a good marks, and we are hoping that you are going to be a top notch rank in GATE 2026. So Ekta, please tell me about yourself, about your background. आपका कॉलेज क्या था, आपका स्कूलिंग कैसे हुई, और कब आपको लगा कि आपको गेट देना चाहिए, और किस पर्पस के लिए आप गेट दे रहे थे। Good afternoon, sir. My name is Ekta Priyadarshini and I'm from Bhubaneswar. I completed my 10th from DAV Public School, Chandrasekhar, Bhubaneswar with a percentage of 95% and my 12th from ODM Public School, Bhubaneswar with a percentage of 85. And currently I'm pursuing my bachelor's in technology in chemical engineering from Veer Surendra Sai University of Technology, Burla, Sambalpur with a current CGPA of 7.2. And I've also done some technical internships at IFCO Paradip and Hindalco Hirakud for like it was summer internship and winter internship. Then I've also gained some hands-on training experience from CPET Bhubaneswar on DSC, TGA, and FTIR analysis. And Right. actually, I was preparing for GATE exam primarily through self-study without any coaching, while balancing my regular semester academics and my hobbies also. And my preparation strategy focused on building the strong fundamental concepts and some consistent revision during the exams and extensive practice for from previous year GATE exam questions and mock tests, which I found from social media, Google, anywhere else. I maintained a disciplined study routine also during the exams mostly, and and analyzed my mistakes, which improved my accuracy and speed. Uh, Through dedication and consistent effort, I was able to score this much marks, which has been a very rewarding outcome of my preparation journey. वेरी गुड। सो एक्चुअली बहुत सारी चीजें आपने बताई, इंटर्नशिप भी कर रही थी आप, कॉलेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस आपका चल रहा था। तो इन सब के साथ में गेट की प्रिपरेशन को आप मैनेज किए और इतना अच्छा स्कोर लेके आ रहे, क्या मार्क्स आ रहे हैं आपके? Sir, 7.32. सॉरी? 7.32 marks. 87.32 marks. So we are very hopeful that you are going to be AIR 1, right? Or maybe 1 to 3. बट मेरा पूरा पर्सनल मानना है कि आपका AIR 1 आना तय है। तो इतना सब करते हुए गेट की प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू करना और इस लेवल पे मार्क्स लेके आना, दैट टू आल्सो इन योर फोर्थ ईयर इटसेल्फ। लोग ड्रॉप लेने के बाद भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो आपने बताया कि आप बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करते थे, तो कैन यू शेयर योर रूटीन टू अवर व्यूअर्स? Sir, first of all, I was या आपका ऑडियो मिस हो रहा है, आई थिंक सो। yes, sir. हाँ। Sir, actually, during the preparation, I followed a discipline and strict study routine. Like I studied daily with fixed time slots for at least 2 to 3 hours, and during that time, I had time slot for the concept learning, numerical practice, and revision. And I regularly during the exam time, like before 1 month or 2 months, I regularly solve the previous year GATE questions and analyze my mistakes to improve the accuracy. And I also learned time and management during that. And I also kept some targets to complete the subjects with consistency through my preparation. ओके, तो टाइमिंग क्या रहता था आपका, किस जो जो आप बोल रहे हो कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हम पढ़ते थे गेट के लिए, तो वो टाइमिंग क्या होता था? मॉर्निंग, इवनिंग, क्या कॉलेज के बाद? So during night time. Okay. ओके, नाइट पर्सन। ओके, सेम लाइक मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स। Yes, sir. ओके, सो गामा सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ
सबसे पहले तो एक तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उन्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक क्वांट जंप किसे कहते हैं वो हमें एकता से सीखना चाहिए। एकता ने जैसे बताया कि लास्ट ईयर एकता का जस्ट कट ऑफ के पास मार्क्स था, और एक साल में सीधा वो 86 के आसपास मार्क्स पहुंचना, ये बहुत ही एक ह्यूज गैप है, और ये मतलब लोगों का सपना रह जाता है इतने इस गैप को फिल करना, जो कि एकता ने बड़े ही अच्छे से और एक शानदार तरीके से किया है। कि मतलब अपनी गलतियों से सीखना किसे कहते हैं, ये हमें एकता से सीखना चाहिए। तो एकता, कौन सी ऐसी गलतियां थी जो आपने लास्ट ईयर एग्जाम में की, और इस बार उन गलतियों से आपने सीख के उसे सारे को रेप्लीकेट आपने किया और उसे फाइनली मार्क्स में कन्वर्ट किया। तो आपने कौन सी ऐसी मिस्टेक्स जो आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बताना चाहोगे कि जो नहीं करनी चाहिए, जो आपसे पहले अटेम्प्ट में हुई थी और आपने उन्हें रिमूव किया, और उसके बाद आपने कितने मार्क्स लेके आए आप? Sir, during my preparation, one mistake I initially made was focusing more on theory and less on numerical practice. Later, I realized that solving a large number of previous year questions is actually essential for GATE. Another mistake was not revising the topics frequently during the exam, um, which sometimes retention affected the retention power. And after recognizing these issues, I improved these mistakes and daily problem solving practice, which helped me strengthen my concepts and improve the performance. आपने टेस्ट सीरीज भी किया था क्या? जितने भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, ये दो तीन चीजें एकता से सीखने की जरूरत है, जो कि एकता ने बताया कि पहली चीज कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते रहते हैं, वो बस पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको अपनी गलतियां पता नहीं लगेगी, और आपको अपनी गलतियां पता नहीं लगेगी तो आप उसे आइडेंटिफाई करके उस पर वर्क नहीं कर सकते। और दूसरा, हम लोग भी बोलते रहते हैं, तो एकता ने बड़ी अच्छी बात कही है कि रिवीजन। कई बार क्या होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में जाके क्या है कि चीजों को याद करना है, वहां पे चीजें अगर आपको याद नहीं आ पाई, आप वहां पे रेप्लीकेट नहीं कर पाए, तो प्रिपरेशन का कोई सेंस नहीं रह जाता। तो दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपको मल्टीपल रिवीजन, और किसी भी एग्जाम में जो सक्सेस के सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है सक्सेस होने के, वो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस करना, और बड़े अच्छे से एकता ने इस चीज पे एम्फेसिस किया कि पीवाईक्यू। क्योंकि देखो पीवाईक्यू का एक मेन मोटो क्या होता है कि जब पीवाईक्यू हम लोग करते हैं इतने सालों की, कि अगर हमने पिछले 30 सालों के पीवाईक्यू कर लिए, 20 सालों के पीवाईक्यू कर लिए, इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट ईयर पीवाईक्यू आए, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी के अलाइन रहेगा, जिसे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देखो टॉपर्स के बहुत सारे सेशंस होते हैं, बहुत सारे वो रहते हैं, इनमें हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो हर सेशन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो जैसे दो तीन चीजें बहुत अच्छी वो बोली, और इन्हें सिर्फ क्या है कि सुनते बहुत लोग हैं, लेकिन मेन है कि आप जब तक इन्हें अपनी प्रिपरेशन में उतारोगे नहीं, जब तक ये आपको हेल्प नहीं करेगा। शिवम सर, आप कुछ कह रहे थे, ओवर टू हाँ। यू। एकता, मैं पूछना चाह रहा था कि आपने टेस्ट सीरीज फॉलो की थी क्या? नहीं सर, तो अच्छा, टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज। तो पर्टिकुलर। मतलब सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के बेस पे अपनी गलतियों को एनालाइज करके, टाइम मैनेजमेंट करके, 87 पॉइंट समथिंग मार्क्स लाना, इट्स इनक्रेडिबल, राइट? इट इज बहुत अच्छा जर्नी रहा है आपका। आपके फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे क्यूरोसिटी हो रही है कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। Sir, actually, my father works is a retired accounts officer. He used to work at RMRC Bhubaneswar, which is ओ, under ICMR, Indian Council of Medical Research, and is currently retired from the duties. And my mother is a housewife, and my father, sorry, my brother was used to study BTech mechanical engineering, and now he's doing some business work. ओके। अच्छा, वो बिजनेस आपसे बड़ा भाई है आपका? Yes, sir. 10 years elder. ओके, तो आपके पापा रिसर्चर हैं, प्रोफेसर हैं, ये बात No, तो sir. My उनके father accounts officer, अकाउंट commerce back, ऑफिसर है? commerce background. कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा। और उनकी जो समझ है, राइट, वो कहीं ना कहीं आप पे रिफ्लेक्ट हो रही है? तो बहुत अच्छा लगा जान के। तेजा सर, आप कुछ अगर यस पूछना सर। चाहें तो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एकता, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बिग अचीवमेंट। एक चीज आपने जो कही है कि पीवाईक्यूज के ऊपर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया, तो हम लोग भी यही कहते हैं स्टूडेंट्स को कि पीवाईक्यू पे बहुत फोकस करो। सो पीवाईक्यू आपने कहा है कि बहुत अटेम्प्ट किया, और मोस्टली आपने पीवाईक्यू को ही एक अपना बेस बना और उसके तरह तैयारी की। तो पीवाईक्यू आपने किस तरह से अटेम्प्ट किए,
मतलब आपके बातों से मुझे लग रहा है कि आपने शायद मल्टीपल टाइम्स भी पीवाईक्यू अटेम्प्ट किए, तो आप जब फिर से उसी क्वेश्चन को रीड करते थे और फिर से सॉल्व करते थे, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी एकता उसके लिए? Sir, topic actually attempted the previous year question topic wise after completing each subject, and this actually it has helped me to understand the exam pattern and the type of numerical problems asked in GATE. And after solving the PYQs, I carefully analyzed the solutions, noted my mistakes, and revised the related concepts. And actually, I'm not someone who considers myself a topper type of student, but I focused on solving that and practicing regularly during exams most of the time and manage the time effectively. Staying there are consistent with self study. Actually, there are very less number of toppers who are saying these words that I'm not a topper material, right? जो जी। टॉपर मटेरियल नहीं भी होता वो भी बोलता नहीं मैं तो टॉपर मटेरियल ही था बचपन से। बट आपने बोला कि मैं टॉपर मटेरियल नहीं थी, ये इट इज अ गेम ऑफ मैनेजमेंट, राइट? द वे ऑफ स्टडी। तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट आपने बोला बच्चों के लिए। और बहुत सारे बच्चों को ऐसा हमेशा से लगता है कि वो शायद टॉपर मटेरियल नहीं है इसलिए टॉपर नहीं बन सकते। बट मुझे तो लगता है आप टॉपर मटेरियल हैं, राइट? मैनेजमेंट इज ओके, योर मैनेजमेंट इज गुड, बट स्टिल यू आर वेरी गुड। तो एकता, बहुत अच्छा लगा आपसे जान के आपकी जर्नी के बारे में। एंड होपफुली वी आर गोइंग टू मीट वेरी सून। आई थिंक 19th को आपका रिजल्ट आ जाएगा, देन वी विल मीट इन नोएडा और आपकी स्टोरी को और बढ़िया तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है, ये बहुत रेयर होता है किसी बच्चे के साथ में कि वो टॉप नॉच रैंक लेके आया, लाइक AIR 1 AIR 2, दैट टू ऑल्सो इन देयर बीटेक 4th ईयर, एंड दैट टू ऑल्सो बाई अटेंडिंग ऑल द क्लासेस। मतलब अभी सेशंस के पहले भी एकता क्लास लेके ही जस्ट सेशन कर रही थी, तो आपके अटेंडेंस भी मुझे लगता है पूरा मेंटेन रखती है actually, ना? my attendance is actually it's not. I'm not regular to the semester classes also. ये Honestly. नहीं बोलना था, ये नहीं बोलना था। नहीं, अच्छी बात है, जो सही है वो आप बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो आप मतलब फ्री लाइक ओके, 4th ईयर में तो हो जाता है, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, इन तीनों में आपका एवरेज मतलब क्या क्या परसेंटेज था आपका अटेंडेंस का? हेलो, एम आई ऑडिबल? More kind of it. So, cut it. हाँ, मैं रिपीट करूँ क्वेश्चन? 1st ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर में आपका एवरेज अटेंडेंस कितना था हर ईयर में? The borderline 75%. कितना? The borderline it would be 75% only. अरे Borderline. ये बहुत ज्यादा होता है। 75 इज अ गुड वन। मुझे तो याद है शायद 3rd ईयर में, 4th ईयर में तो, 3rd ईयर 4th ईयर में तो मेरा शायद 25 भी नहीं रहा होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे जान के। Sir, बाकी our college has attendance criteria. 70 attendance criteria. थोड़ा आपका वॉइस कट रहा है, एक बार दोबारा बोल सकते हो आप, क्या Hello. बोल रहे थे? हाँ, क्या बोल रहे थे? Sir, our college has that attendance criteria, 75% attendance criteria. हाँ, पर फुलफिल नहीं होने पे भी कुछ ज्यादा होता नहीं है। सर if तो फुलफिल अगर नहीं हुआ तो एग्जाम नहीं दे सकते, अटेंडेंस बैक लग जाता है। ये आपके कॉलेज में करते हैं? किसी की यस लगी है सर। अटेंडेंस बैक अभी तक? सर मेरी लगी थी। अच्छा, तुम्हारी खुद की लगी हुई थी? ओ यस माय सर, थर्ड गॉड। ईयर में। चलिए, आप तो बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन लग रहे हैं मुझे। और मैं श्योरली मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक स्पेशल पॉडकास्ट की जाए आपके साथ में व्हेन यू विल कम टू नोएडा, बिकॉज ये यहाँ पे थोड़ा जूम में ग्लिच रहता है, थोड़ा आपकी आवाज़, कभी इंटरनेट का इशू रहता है। सो वी हैव इन इन अवर लाइक अवर जो हमारा कैंपस है नोएडा में, वहाँ पे पूरा ब्रॉडकास्ट का एक प्रॉपर सेटअप होता है। हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि
जो आपका पढ़ने का तरीका है, जो आपका कॉलेज जीने का तरीका है, वो बहुत सारे बच्चों से रिलेट करेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई इंटरैक्ट विद द टॉपर्स, देन दे यूज्ड टू से आई एम अ टॉपर, राइट? दे यूज मैं टॉपर हूँ और मैं एकदम अलग तरीके की जिंदगी जीता हूँ, राइट? बट in your case it is seems like different. It seems like you are living a normal life, normal kind of student, but still you are getting such a great marks. So this is going to be very much motivating for our audience and future GATE aspirants. So we will definitely, we would like to invite you for this uh, when GATE celebration, right? So once GATE result will announce, the team will connect you and we will meet and we will do a I have. good podcast with you. Okay? Sir, I want to ask you a question like हाँ. about the felicitation ceremony. Sorry. I want to ask you one question about the felicitation ceremony that you are telling on 19th. Felicitation ceremony. Okay, okay. Do one. We will connect you personally. Okay. I will connect you personally and वो तो हो जाएगा। बट क्या है कि मतलब अभी का जो सेशन में ये मुझे लग रहा है कि आपका जो स्टोरी है, जो आपका वे ऑफ लिविंग है, जो आपका पढ़ने का तरीका है, दैट इज वेरी मच कॉमन टू द इंजीनियर्स एंड वो अपने से रिलेट करेंगे। हैं तो वो हम Yes, लोग करेंगे। और जो ये फेलिस्ट्रेशन का जो डिटेल होगा, डे टाइमिंग, ये सारा चीज हम आपसे पर्सनली कनेक्ट करके बता देंगे। ठीक है? yes, चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और Let's शिवम make सर, it एक tomorrow. बहुत अच्छी चीज, मतलब जो काफी एक अच्छी चीज ये रही कि सोचो एक कट ऑफ मार्क से कंसिस्टेंसी की हेल्प Yeah. से, मतलब ये बहुत काबिले तारीफ चीज है कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी टैलेंट को बीट कर देता है। और ये उसी का एक एग्जांपल है। मतलब कंसिस्टेंसी और इनक्रेडिबल हार्ड वर्क जर्नी और है ये। लगातार एकदम वो करना, मतलब वो काफी इंप्रेसिव है। थर्ड ईयर में 22 मार्क्स एंड फोर्थ ईयर में डायरेक्टली जंप टू 86 मार्क्स। It is a really incredible journey and we would like to listen this journey in a detail. So जब आप आएंगे तो हम लोग इसको सुनेंगे, बच्चे भी सुनेंगे, लोग जानेंगे और हम लोग एंजॉय करेंगे। ठीक है? yes. ओके, चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस ओके, अगेन। कॉन्ग्रेचुलेशन ओके, अगेन। वंस अगेन थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। Thank you. थैंक यू।